Hello dear students, hope you all are good and doing study proper way. And dear students, in today's video we are going to discuss, this video is the part second of figure of speech. I have already uploaded part 1 of figure of speech and जिससे मैंने आपके से 6 figure of speech discuss किया था. The video was of about 30 minutes, तो मुझे So I plan to make second part, otherwise video काफ़ी lengthy हो जाती. तो I will discuss with you remaining 6 to 7. 15 I have planned for you. For 9 to 12 these 15 are enough. तो इसमें आपका सारा figure of speech cover up हो जाएगा. This is part 2 of figure of speech, and I hope you have seen the part 1. If you have not seen the part 1, please go in the playlist of my YouTube channel. आपको मिल जाएगा वहाँ पे figure of speech, and please see that, right? And if you are willing to make notes with that, you can make notes also, because definition is given there with the help of example and you will understand it better. So let's start without wasting time. We'll move to the remaining figure of speech. I have to explain you today. I'm going to explain from transfer epithet. This transfer epithet is not used in yours, but I'm teaching you again so that you have knowledge of this, right? चलिए देखते हैं क्या है transfer epithet and we'll try to understand it. Okay, wait a second. Okay. See, in transfer epithet what happened? See, first see the definition, then I'll explain you will understand. See, in transfer epithet means what? I'm telling you adjective. The qualifying object is transferred from a person to the things as in a phrase. For example, sleepless night, sunburn month, melodious play, right? सर क्या है ट्रांसफर एपिथेट? अब इसको एक सिंपल लैंग्वेज में अगर समझना हो तो देखो, in transfer epithet, adjective or the words which tells something about the subject of the sentence. Actually, see, adjective stand for the subject of the sentence. This tells something good, bad about the subject. But यहाँ पे क्या होता है? In transfer epithet, this adjective which is known as epithet, ठीक है? Adjective can be negative also, can be positive also. Means एक subject की कोई अच्छाई या बुराई बताता है adjective, right? ये in transfer epithet it is transferred to the another things. It is not placed directly beside the subject. जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा है? In transferred epithet, the qualifying object is transformed from a person. मतलब जिस सब्जेक्ट या प्रॉपर नाउन को जो एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा है वो वहाँ से हटा करके कहाँ रख दिया जाता है? टू अ थिंग्स एज इन अ फ्रेज, एक दूसरे ऑब्जेक्ट के पास उसको रख दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल देखो, स्लीपलेस नाइट. एक्चुअली होना क्या चाहिए? नाइट इज स्लीपलेस, बट कर क्या दिया? देखो, दिस स्लीपलेस स्टैंड फॉर दिस नाइट. नाइट कैसी थी? रात कैसी थी? स्लीपलेस थी. लेकिन क्या लिखा है यहाँ पे? स्लीपलेस नाइट. नाइट के आगे स्लीपलेस को रख दिया. यही है ट्रांसफर एपिथेट, जब एडजेक्टिव को उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पे ना रख के किसी और लोकेशन पे रख दिया जाए इन अ सेंटेंस. ठीक है, ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को बोलते हैं ट्रांसफर एपिथेट. फॉर एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल देखो, आपको सेकंड से हो क्लियर हो जाए बेटर. Actual example is what देखो. See, flower. See example. Flower is beautiful.
यहाँ पे जो एडजेक्टिव है ये किसके लिए आ रहा है? इट इज कमिंग फॉर फ्लावर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? बट अगर इस सेंटेंस को, इस स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा चेंज कर दूं, मैं लिख दूं ब्यूटीफुल फ्लावर। अब यहाँ पे देखो, फ्लावर इज ब्यूटीफुल, हमने क्या लिख दिया? ब्यूटीफुल फ्लावर। जैसे मैं कहूँ ब्यूटीफुल फ्लावर आई गॉट, ब्यूटीफुल फ्लावर आई गॉट। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ट्रांसफर एक्चुअल होना चाहिए आई गॉट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, या फिर फ्लावर इज ब्यूटीफुल। यहाँ पे देखो, इसको फ्रंट पे रख दिया गया, जो एडजेक्टिव को आना चाहिए फ्लावर के बाद, इट इज कमिंग बिफोर, तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर एपिथेट। बट इन योर पोएम्स व्हाट आई हैव नोटेड, दिस ट्रांसफर एपिथेट इज नॉट यूज्ड। ठीक है, आप में पर्सनिफिकेशन है, अपोस्ट्रोफी है और बहुत सारी, बट इवन यू सी दिस। चलो नेक्स्ट देखते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट। यूफेमिज्म क्या है? व्हाट इज यूफेमिज्म? यूफेमिज्म मीन्स, फर्स्ट सी द डेफिनेशन, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बाय यूजिंग द यूफिज्म वी स्पीक एन एग्रेबल, इनएग्रेबल, नॉट एग्रेबल, इनएग्रेबल and favorable term of some person, object or event which is ordinarily considered unpleasant and disagreeable. सीधा ऐसे समझिए, सिंपल लैंग्वेज में, यूफेमिज्म फिगर ऑफ स्पीच is used to show and so unpleasant ऐसे यहाँ पे देख लीजिए, unpleasant things or action in a very pleasant way, in a very pleasant way. For example, जब कोई, for example देखो, for example means euphemism figure of speech used to show a disagreeable things in a very agreeable way, very normal way. जैसे कोई एबनॉर्मल घटना है बट उसको भी बड़े नॉर्मल वे से घटना। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, अभी तो दिया है, आई एम टेलिंग, ही इज टेलिंग अस अ फेरी टेल, ही इज टेलिंग अस अ फेरी टेल मतलब ही इज टेलिंग अस लाई। डायरेक्ट ये कहना है ही इज टेलिंग लाई, आपने क्या कहा? ही इज टेलिंग अ फेरी टेल, मतलब झूठी बात बता रहा है। ही हैज फॉलन asleep, अब यहाँ पे देखिए, ही हैज फॉलन asleep, एक्चुअल में क्या हुआ? ही इज डेड। अगर और दूसरा एग्जांपल, ही इज नो मोर, he is no more, he is no more, एक्चुअल में क्या हुआ? डेथ हुई किसी व्यक्ति की, बट आप यू आर नॉट टेलिंग डेथ, यू आर टेलिंग ही इज नो मोर। मीन्स टू टेल एन एबनॉर्मल थिंग और एक्शन इन अ वेरी नॉर्मल वे इज कॉल्ड यूफेमिज्म फिगर ऑफ स्पीच, इज कॉल्ड यूफेमिज्म फिगर ऑफ स्पीच। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आयरनी, दिस इज ऑल्सो इन योर पोएम। आयरनी, व्हाट इज आयरनी? सी, आयरनी मीन्स, हेलो, irony means what? See, first see the definition, then I'll explain. See, in this mode of speech, the real meaning of words used are different from the intended meaning. Means reality, इसमें whatever, सीधा समझिए ऐसे, irony is a figure of speech in which reality is just opposite of the things told. For example, यहाँ पे देखिए, the child of a cobbler has no shoes. क्या ऐसा हो सकता है? The child of a cobbler has no shoes. क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। मीन्स यहाँ पे क्या है? आयरनी फिगर ऑफ स्पीच। आयरनी फिगर ऑफ मीन्स जब थिंग्स टोटली अपोजिट हो। फॉर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। द बिल्डर, द हाउस बिल्डर, द हाउस बिल्डर सन
हैज नो हाउस। अब यहाँ पे देखो, एक व्यक्ति है जो बिल्डिंग्स बनाता है, घर बनाता है, और उसके सन के पास घर नहीं। ये क्या है, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच? आयरनी। विच फिगर ऑफ स्पीच? Irony figure of speech. These are irony figure of speech. Means when anything is totally opposite of the reality, it's called irony figure of speech. I hope it is clear. चलिए next देखते हैं. Next, let's see next. Pun. What is pun? See, pun is this consists of a play on the various meaning of the word. It affects each often ridiculous. For example, is life worth living? It depends upon the liver. Means ये जो pun होता है ये play with words कहते हैं. Play with words. Play with words. इसमें the sentences are having double meaning. जैसे देखो, is life worth living? क्या life no को जीना एक वैल्यूबल है, वर्थ लेवल है, ये किस पे, ये क्या लिखा है फिर? इट्स डिपेंड अपॉन द लिवर। ये तो डिपेंड करता है लिवर पे कि आप अपने जीवन को वैल्यूबल बनाते हैं या फिर आप बेकार करते हैं। ऑब्वियसली द कॉन्स्टिट्यूशन इज अगेंस्ट प्रोस्टिट्यूशन एंड कांग्रेस इज अगेंस्ट प्रोग्रेस। ठीक है, हियर कॉन्ग मीन्स अगेंस्ट एंड प्रो मीन्स तो दिस इज फॉर। ठीक है, यहाँ पे प्लेइंग विथ डबल मीनिंग टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, तो दैट इज वन फिगर ऑफ स्पीच। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट इज एपिग्राम। एपिग्राम इज व्हाट? See, it is a brief pointed saying. It couples words which apparently contradict each other. The language of the epigram is remarkable for its brevity. Example, the child is the father of the man. ये वर्ड्सवर्थ की लाइन है, एपिग्राम है ये। Fools rush in where angels fears to tread. इसमें क्या होता है, इसमें दो अपोजिट विरोधाभासी अपोजिट आइडियाज को रखा जाता है। The child is father of son. The art lies in concealing art. आर्ट किस में है? आर्ट को छिपाना ही भी एक आर्ट है। Silence is sometimes more eloquent than words. Conscious by its absence. So these are the example of epigraph. Let's see some more. Epigraph is not used in the class 9th, 10th, 11th poem. Antithesis is there, mostly used in your poem is antithesis. Antithesis क्या है? In antithesis means placing to a striking opposition or contrast of word is made in the same sentence in order to secure emphasis. For example, antithesis में क्या होता है, दो अपोजिट चीज़ों को साइड बाय साइड रखती है। देखो, टू एरर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। गलतियाँ इंसान करता है, उसको फॉरगिव कौन करता है? गिव एवरी मैन द ईयर बट फ्यू द वॉइस। ठीक है, सबको ईयर दे दो लेकिन आवाज़ बोलने की शक्ति कम है। सो दिस इज एंटीथेसिस। इन एंटीथेसिस व्हाट हैपन, टू अपोजिट आइडियाज आर सेट साइड बाय साइड। ऑक्सीमोरन क्या है? सी इन ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच it is a figure of speech which combines two seemingly contradictory or incongruous words for sharp emphasis or effect. For example, darkness visual, make haste slowly, loving hate. देखो, ऑक्सीमोरन में दो अपोजिट वर्ड्स साइड बाय साइड रखे। देखो, डार्कनेस विजुअल, डार्कनेस और विजुअल। डार्कनेस तो डार्क होता है, विजुअल उसका ठीक अपोजिट है। मेक हेस्ट स्लोली, मेक हेस्ट मतलब जल्दी जाओ लेकिन स्लोली। लविंग हेट, लविंग और हेट। तो आपने क्या देखा, एक ऑक्सीमोरन को आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान है। टू वर्ड्स अपोजिट एकदम नियर बाय नियर रखे रहते हैं, साइड बाय साइड ही रहते हैं सेंटेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज नेक्स्ट? लिटोटस क्या है? इट इज द अपोजिट ऑफ हाइपरबोल। लिटोटस क्या है? और हाइपरबोल का अपोजिट है। हाइपरबोल में वन क्या होता है, चीज़ों को एक्सरेट कर दिया जाता है। वन एक थप्पड़ मारा किसी को, अपने शो बताया। और लिटोटस में अपोजिट, हियर
हियर एन अफर्मेटिव इज कन्वेड बाय नेगेटिव, इसमें क्या होता है, अफर्मेटिव को नेगेटिव बोल के बताया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ही इज नो डॉलर्स, आई एम नॉट लिटिल, फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग यू, ऐसे समझिए ये एग्जांपल। ही इज नॉट अ बैड सॉर्ट, ये एक सही है, दो डिफिकल्ट है आपके लिए। ये भी है, देखो आई एम नॉट लिटिल का मतलब मैं छोटा नहीं हूँ, आई एम बिग। सपोज फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू हैव यू डन योर वर्क, आपने क्या रिप्लाई दिया, यस, आपने कहा आई हैव नॉट, और यू कैन से यू हैव सेड माय वर्क इज, आप ऐसे कह सकते हैं हैव। इफ आई आस्क यू हैव योर वर्क कंप्लीटेड, तो आप कह सकते हैं माय वर्क इज नॉट इनकम्प्लीट, मेरा जो वर्क है वो इनकम्प्लीट नहीं है। अब देखिए आपने नॉट, नेगेटिव सेंटेंस से पॉजिटिव आइडिया, तो वेरी सिंपल है, लेटर टेस्ट में नेगेटिव सेंटेंस से पॉजिटिव आइडिया दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इफ एनीबडी सेइंग यू आर अ फूल, आप क्या कह सकते हैं आई एम नॉट अ फूल, इसका मतलब क्या हुआ, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम इंटेलिजेंट, क्लियर। सो लेटर टेस्ट में क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव सेंस दिया जाता है, क्लियर। चलो इंट्रोगेशन, फिफ्थ नंबर। इंट्रोगेशन क्या है इसमें, अब इंट्रोगेशन को समझ लीजिए इंट्रोगेटिव से, राइट। मीन्स अ फिगर ऑफ स्पीच व्हेन यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन नॉट फॉर गेटिंग आंसर बट फॉर एम्फेसिस। फॉर एग्जाम्पल सपोज, अब पहले डेफिनेशन देख लीजिए फिर मैं आपको बताता हूँ उसको ज़्यादा अच्छे से। सी दिस इज द रिटोरिकल मोड ऑफ affirming or denying the something more strongly than could be done in the ordinary language। अब इसका दूसरा डेफिनेशन भी हो सकता है कि इंट्रोगेशन फिगर ऑफ स्पीच इज द फिगर ऑफ स्पीच विच इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन नॉट फॉर गेटिंग द आंसर बट फॉर emphasis, but for emphasis, where it is, देखो यहाँ पे दिया हुआ कहीं नहीं दिया है, मैं बताता हूँ, emphasis, but for emphasis। देखो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, interrogation figure of speech is the figure of speech which is used in a sentence not for getting answer but for emphasis, ठीक है। अब जैसे देखो, who is here so base that would be bad man, who is here so rude that would not be a Roman, who is here so vile that will not love his country। अब देखो इसका एग्जांपल से मैं आपको इजी एग्जांपल देता हूँ। देखो, what is your name, what is your name, tell me what is your name। अगर मैं ऐसा कहूँ what is your name, tell me what is your name, ये क्या है, I am just putting emphatic, I am asking a question not for answer but for making the things more emphatic। For example, if I am saying have you done your work, have you done your work, एक ही बात को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये इसलिए नहीं कि you have your work is done, I am just trying to highlight that your work is not done, right। तो इंट्रोगेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड टू शो फॉर एम्फेसिस, किसी एक बात पर जोर डालने के हम we use this इंट्रोगेशन फिगर ऑफ स्पीच आंसर के लिए, राइट। चलिए 16 नंबर देखते हैं, exclamation figure of speech। In this what happened, it is used for strong expression, is feeling or feeling। For example, oh lift me as wave, a leaf, a cloud, I fall upon the thorn of life, I bleed। ये क्या है, ये सडन फीलिंग और सॉरो को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। एक्सप्रेशन फीलिंग भी आपको ये पता चल जाएगा, जहाँ पे ओ एलास इस तरह के वर्ड आएंगे तो आप समझ जाइएगा एक्सप्रेशन फिगर ऑफ स्पीच बहुत ही सिंपल है, इसमें ये सिंबल भी यूज होता है, राइट। इसे देखिएगा। नेक्स्ट क्लाइमैक्स क्या है, ये देख लीजिए, क्लाइमैक्स एंड एंटी क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स में क्या होता है, सी क्लाइमैक्स फॉर एग्जांपल ये वर्ड आपने सुना होगा मूवीज में, क्लाइमैक्स
क्लाइमेक्स का मतलब जब चीज़ें ऊपर की तरफ जाए। इन क्लाइमेक्स फिगर ऑफ स्पीच द आइडियाज आर सेट इन असेंडिंग ऑर्डर लाइक 1 2 3 4 5। जो सीन हो रहे हैं वो सीक्वेंस में होंगे। व्हेन आइडियाज आर सेट इन द असेंडिंग ऑर्डर दैट इज कॉल्ड क्लाइमेक्स। देखो यहाँ पे इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ सीरीज ऑफ आइडियाज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हाट अ पीस ऑफ वर्क मेड, हाउ नॉवेल in reason, how infinite in faculties and in action how like it। ये एग्जाम्पल आपके लिए डिफिकल्ट है, मैं आपको इजी एग्जाम्पल बताता हूँ। वेट फॉर अ सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल आई मेड नोट, प्रिपेयर एंड पास द एग्जाम, पास्ड द एग्जाम। अब देखो, सबसे पहले आप पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, नोट्स बनाते हैं, फिर प्रिपेयर करते हैं, फिर एग्ज़ाम पास करते हैं। ऐसा तो नहीं पहले एग्ज़ाम पास करते हैं, फिर प्रिपेयर करते हैं, फिर नोट्स बनाते हैं, ऐसा नहीं है। अब ये देखिए आइडियाज़ क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में सेट है। तो दिस इज क्लाइमेक्स फिगर है, बहुत ही सिंपल है, आप सोच सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, मॉम कट वेजिटेबल, मॉम कट वेजिटेबल, cooked it and served माँ ने क्या किया, वेजिटेबल को काटा, कुक किया और सर्व किया। देखो आइडियाज़ क्या है, एक सीक्वेंस में है ना, पहले आप कट करते हैं, फिर कुक करते हैं, फिर खाते हैं। ऐसा तो नहीं पहले सर्व कर देते हो, फिर कुक करते हो, फिर खाते हो, फिर कट करते हो। इट्स नॉट लाइक दैट। तो दिस इज क्लाइमेक्स फिगर। जब आप आइडियाज आपको सीरीज में देखें तो समझ चाहिए कि क्लाइमेक्स फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट चलिए हम इसमें बस एंटी क्लाइमेक्स से देखेंगे, अदरवाइज वीडियो गोइंग टू बी लॉन्ग करना, बाकी मैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट में डालूंगा। एंटी क्लाइमेक्स या बैथोज इसमें ठीक अपोजिट होता है। क्लाइमेक्स में क्या होता है, चीज़ें ऊपर की तरफ जाती हैं, असेंडिंग ऑर्डर में सेट होती हैं। एंटी क्लाइमेक्स में क्या होता है, अपोजिट। ठीक है, पहले 4 फिर 5 सॉरी पहले 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। ठीक है, इस तरह से होगा। क्या है मतलब मैं बता रहा हूँ। देखो दिस इज जस्ट अपोजिट ऑफ क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स सिग्निफाई हायर टू द लोअर। इसमें सबसे लास्ट वाला आइडिया सबसे पहले आता है। अ मैन सो वेरियस, दिस एग्जाम्पल और लेटर डिफिकल्ट, तो मैं आपको ईजी एग्जाम्पल देता हूँ उसको समझने के लिए। आई पास्ट प्रिपेयर्ड एंड मेड नोट्स। ठीक है, आई पास्ट प्रिपेयर्ड एंड मेड नोट। ठीक है, ये क्या है, एंटी क्लाइमेक्स। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया। अब फिर मैं इसके बाद थर्ड पार्ट में अपलोड करूँगा, अदरवाइज वीडियो इज गोइंग टू बी सो लॉन्गर। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग the figure of speech. Please do share the video with your friends, and if you have not subscribed the channel, please do subscribe so that you can get all the latest video from this channel related English language. Thank you so much for watching. Good luck and goodbye. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and press the bell icon so that you can get latest notification of my every